students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is more on Windows 7. Windows operating system lets you use the computer for various tasks. It provides multitasking features. In this chapter, we shall learn how to work with Windows Media Player to play music, watch movies, burn CDs, etc. However, as you go through this chapter and simultaneously work on your machine, you will discover new ways of operating your computer. तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपके कंप्यूटर में वेरियस टास्क करवाता है, साथ ही साथ ये आपको मल्टीटास्किंग फीचर्स देता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कैसे हम विंडो मीडिया प्लेयर को यूज़ करते हैं म्यूज़िक को प्ले करने के लिए, मूवीज़ को रन करने के लिए एंड सीडीज़ को बर्न करने के लिए. इसके साथ साथ हम जानने वाले हैं कि जो मशीन है कंप्यूटर उस पर आप साइमल्टेनियसली कैसे आप काम कर सकते हो और कैसे नए नए तरीके आप डिस्कवर कर सकते हो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के. विंडो मीडिया प्लेयर. Window Media Player is used to play and organize digital media files, audio and video on a computer and internet. We can listen to radio stations from all over the world, play and copy CD, DVD, create our own CD, DVD and copy music and video to portable devices. तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है ये आपका यूज़ किया जाता है. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके जो मूवीज़ होती हैं, जो आपका साउंड होता है उसको इसमें प्ले किया जाता है और आप इजीली उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पाते हो. ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें अपने जो सीडीज़ डीवीडीज़ होती हैं उनको आप प्ले कर सकते हो, उनको कॉपी कर सकते हो. To start Windows Media Player, click on Start All Program Windows Media Player. The media player open up in the library view. In the library view, you can access and organize your digital media collection. Within the navigation pane, you can choose a category such as music, pictures or videos. For example, to see all your music organized by genre, double click on music and then click genre. तो कैसे आप विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करते हो? आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट प्रोग्राम पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे देन आप जाएंगे, देन आप विंडो मीडिया प्लेयर पे जाएंगे. जो मीडिया प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा एक लाइब्रेरी व्यू में. इस लाइब्रेरी व्यू में आप एक्सेस कर पाओगे और ऑर्गेनाइज कर पाओगे अपने डिजिटल मीडिया कलेक्शन को. इसमें आपको नेविगेशन पैन दिखेगा जिसमें आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी होगी जिसमें आपके म्यूज़िक, पिक्चर और वीडियोज़ होंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो म्यूज़िक होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जनर्स के थ्रू. जब आप डबल क्लिक करते हो म्यूज़िक पे तो आपके इसका मतलब होता है कि आप जनर पे क्लिक करते हो. तो क्लिक करने के बाद आपका जो जनर है वो आपके म्यूज़िक को प्ले करता है. नाउ रिप CD टू योर कंप्यूटर. You can use Windows Media Player to copy songs from audio CDs to your computer. This process is called ripping. When we rip music, we are copying songs from a CD to a computer. After the songs have been copied to our computer, we can use Windows Media Player to play and organize the songs, create playlist and copy music to a portable device. For this, follow the given steps. Step 1. Click Start All Programs Windows Media Player. Step 2. Insert a CD in the CD drive. Now you will see the list of songs present on the CD in the Windows Media Player. Step 3. Clear the check boxes next to any song that you do not want to rip. You can use the check box at the top of the list to select or clear all check boxes at once. Step 4. After the selection, click on Rip CD. The ripping process will start and you can see the rip status of individual songs. To stop the ripping process at any point, we have to click on Stop Rip button. Step 5. Click on Rip Setting button to change the format, audio quality of rip music files, or we can keep the default Windows Media formal settings. The songs are ripped to the Windows Media Player library. Step 6. After the songs have been ripped, go to the library to play them. अब जान लेते हैं कैसे हम अपनी सीडी को कंप्यूटर में रिप करते हैं. ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर जो होता है ये आपके ऑडियो सीडीज़ को क्या करता है, कॉपी करता है अपने सॉफ्टवेयर में. साथ ही साथ सॉफ्टवेयर से आप सीडी में सॉन्ग्स भी
डाल सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है ये रिपिंग कहलाता है, और जब आप किसी भी म्यूज़िक को रिप करते हो या फिर आप कॉपी करते हो सॉन्ग को कंप्यूटर में, तो वो आपकी सीडी के अंदर भी कॉपी हो जाता है। आफ्टर द सॉन्ग कॉपी टू योर कंप्यूटर, आप उसको ईजिली विंडो मीडिया प्लेयर में प्ले कर सकते हो। जब आप सीडी से कंप्यूटर पे अपने कोई भी सॉन्ग डालते हो तो आप विंडो मीडिया प्लेयर पे उसको क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं और अपनी जो लिस्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, देन आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, उसके बाद आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे फिर आप सीडी को इंसर्ट करेंगे सीडी ड्राइव में, ठीक है, और फिर आपके जो सॉन्ग्स हैं जो आपकी सीडी के अंदर हैं वो आपको विंडो मीडिया प्लेयर में दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको चेक बॉक्सेस को क्लियर करना है नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग जिसको आप रिप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चेक बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसमें आप चेक करके सारे जो बॉक्सेस हैं उन्हें एक ही बार में क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। देन जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन रिप सीडी। जो रिपिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप रिप स्टेटस भी इजीली देख सकते हो इंडिविजुअल सॉन्ग्स का कि कौन सा सॉन्ग जो है वो कितना रिप हुआ है, कितना वो कॉपी हुआ है। उसके बाद आपको रिप सेटिंग बटन पे जाना है और आपको फॉर्मेट को चेंज करना है। जो उसकी ऑडियो क्वालिटी है रिप म्यूज़िक की फाइल की वो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके विंडो मीडिया प्लेयर फॉर्मेट में ही रहता है, ठीक है। तो जो सॉन्ग्स हैं आपके जो रिप्ड हो चुके होते हैं वो आपके विंडो मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी में ही रहते हैं। जब आपका सॉन्ग रिप हो जाएगा तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे उन्हें प्ले करने के लिए। नाउ बर्निंग अ सीडी। To burn a CD means to copy data from your computer to a CD. To copy data, follow the given steps. Step 1, insert a CD into your computer. The autoplay dialog box appears. Step 2, click on the burn files to disk using Windows Explorer option. Step 3, the burn a disk dialog box appear. Mention the CD name and disk title text box and click on next. Step 4, an empty disk folder opens. Drag the files that you want to burn into this folder. Step 5, on the toolbar, click on the burn to disk button and then follow the steps in the wizard. अब हम सीखेंगे कैसे हम किसी सीडी को बर्न करते हैं। बर्न सीडी का बर्न करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको जलाना। सीडी बर्न का मतलब होता है कि उसमें जो डेटा है आपके कंप्यूटर में वो आप सीडी में क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, उन्हें कॉपी करते हो। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। आपको सबसे पहले तो सीडी को इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। आपके सामने ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आप क्लिक करेंगे बर्न फाइल टू डिस्क यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन पे। फिर वहाँ पे आपको बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा जहाँ पे आपको मेंशन करना है सीडी का नाम इन द डिस्क टाइटल, ठीक है। और फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। एम्प्टी जो होगा आपका डिस्क फोल्डर वो ओपन हो जाएगा और आपको ड्रैग करके लेके जाना है फाइल को जिसको आप बर्न करना चाहते हैं, जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। टूल बार पे आप क्लिक करेंगे ऑन बर्न टू डिस्क बटन पे। इसके बाद आप फॉलो करेंगे इन द विजार्ड पे। जो विजार्ड पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गएंगे उनको आप फॉलो करेंगे। Now remember, you can also burn a CD using software like Nero, Express, Burn, etc. अब CD burn करने के कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो CD burn करने के लिए। Disk cleanup. Quite often we find that there are a number of unnecessary files in the hard disk of our computer. So it is necessary to remove these files so as to free up the disk space. Therefore, we remove the temporary internal and downloaded program files. Make empty the recycle bin file and other items that are not being used for a long time. To do this, follow the given steps. Step 1, click on Start All Programs, Accessories, System Tool, Disk Cleanup. A disk cleanup drive selection dialog box opens asking to select the drive. Step 2, now click on the drop down arrow and select the drive that we want to clean up and then click OK. Now the utility will search the drive and display the necessary files that can safely be deleted. Step 3, select the file that you want to delete. Step 4, finally click on OK. अब हम जान लेते हैं कैसे डिस्क
क्लीन अप हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें डिस्क में स्पेस चाहिए होता है, तो उसमें ऑलरेडी जो फाइल है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके हैं उसे हम क्या करते हैं क्लीन कर लेते हैं ताकि हम उसमें और डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, देन आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, देन आप एसेसरी पे, उसके बाद आप सिस्टम टूल पे जाएंगे, देन आप डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे। एक डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जो आपसे ड्राइव को आस्क करेगा, मतलब आपसे पूछेगा कि कौन सी ड्राइव आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन आपको ड्रॉप डाउन एरो में सेलेक्ट करना है ड्राइव को जिसको आप क्लीन अप करना चाहते हैं, देन आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो यूटिलिटी है वो आपकी सर्च करेगी ड्राइव को और डिस्प्ले करेगी नेसेसरी फाइल्स को जिनको आप सेफली डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप वहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। हो सकता है आप सारी फाइल्स को ना डिलीट करना चाहते हो, कुछ फाइल्स को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको उन फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन फाइनली आप क्लिक करेंगे ओके पे। The control panel is an important part of the Windows operating system. It is a collection of several small applications that allow us to control the settings of the various software and hardware parts of the computer. To open control panel, follow the given steps. Step 1, click on start button. Step 2, start control panel. The control panel window appears on the screen. The control panel can be displayed in 3 views: category views, large icons view and small icon view. The control panel contains 8 categories. All these categories help us to manage different resources and functioning of the computer system. To change the view, click on the view by arrow and select the desired view from the drop down list. By default, view of control panel is category view. अब जान लेते हैं आप कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल जो होता है ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपके कलेक्शन माना जाता है सेवरल स्मॉल एप्लीकेशंस का जो आपको अलाउ करता है ताकि आप वेरियस सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग है उसे आप कंट्रोल कर सको। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की जो सेटिंग होती है वो कंट्रोल पैनल के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। अब आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसमें आपको 2 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, देन आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल विंडो जो है आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको 3 व्यूज़ में आपको ये जो पैनल है वो दिखेगी: कैटेगरी व्यू, लार्ज व्यू एंड आपका स्मॉल आइकन व्यू। कंट्रोल पैनल कंटेन्स करता है 8 कैटेगरीज़ को। ये सारी की सारी कैटेगरीज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने में, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को भी ये मैनेज करती हैं। इनको आपको अगर इन व्यूज़ को आपको चेंज करना है तो आपको व्यू बाय एरो में क्लिक करना होगा, देन आप डिज़ायर व्यू को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, ठीक है। Changing date and time setting. We can change the date and time displayed in the notification area of the taskbar by the following given steps. Step 1, open the control panel and click on the clock, language and region category. Step 2, click the date and time option. The date and time dialog box appears. Step 3, click a change date and time button. The date and time setting dialog box appears. Step 4, now change the date and time of your system. To make changes in the date, change the month, year and day. To make changes in the time, change the hour by clicking the arrow to increase or decrease the value. Similarly, change the minutes and seconds. Step 5, click OK button on the date and time setting dialog box. Step 6, click OK button on the date and time dialog box. अब जान लेते हैं कैसे हम डेट एंड टाइम्स को सेट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे कंट्रोल लैंग्वेज एंड रीजन कैटेगरी को। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम ऑप्शन को। यहाँ पे आपके सामने डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने डेट एंड टाइम को चेंज करेंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम सेटिंग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो मंथ, ईयर, डे में आप जाएंगे। अगर आप टाइम चेंज करना चाहते हैं आवर बाय क्लिकिंग, तो इस तरीके से आप अपनी घड़ी के मिनट्स एंड सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन आप ओके बटन करेंगे अगर आपके डेट एंड टाइम जो है वो सेट हो जाएंगे, और अगर आपके टाइम जो है आपका जो आपने सेट किया था डे एंड टाइम वो भी अगर आपका हो जाता है तो उस पर भी आप ओके करेंगे। Do you know you can also click the clock on the taskbar and then click
चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग टू ओपन द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स। आप अपने टास्क बार पे भी क्लिक कर सकते हैं अपनी जो डेट है और जो टाइम है उसे चेंज करने के लिए। नाउ चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज। The mouse is a primary input device for working in Windows. Using the control panel, we can change the setting of the mouse according to our requirement. Changing the double click speed of mouse. Follow the given steps to change the double click speed of the mouse. Step 1. Open the control panel and click on the hardware and sound category. Step 2. Click on mouse from device and printer option. The mouse property dialog box appears. Step 3. Click on the button tab. Step 4. Drag the speed slider in a suitable direction to set the double click speed as slow or fast. Step 5. Click on the apply button to apply the settings. Step 6. Click on OK to close the dialog box. अब आप अपनी माउस की जो सेटिंग है उसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उसकी जो डबल क्लिक की स्पीड है उसे आप अपने हिसाब से स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, देन आपको क्लिक करना है हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी पे, देन आप क्लिक करेंगे माउस फ्रॉम डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपको माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जब अपीयर हो जाएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है बटन टैब पे, देन आपको ड्रैग करना है स्पीड स्लाइडर इन अ सूटेबल डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें आपकी जो डबल क्लिक की स्पीड है अगर आप स्लो करना चाहते हैं या उसको फास्ट करना चाहते हैं तो ये आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी एंड देन आप ओके पे क्लिक करेंगे टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। नाउ चेंजिंग द पॉइंटर्स टाइप। यू कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ पॉइंटर्स शेप दैट अपीयर्स एट डिफरेंट एक्शंस व्हाइल वर्किंग इन विंडोज। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर। Step 1. Open the mouse properties dialog box and click on the pointers tab. Step 2. Select the pointer type you want to change from the customized list. Step 3. Click the browse button. A browser window appears that display the available pointer. Step 4. Select the required pointer shape. Step 5. Click the open button. Step 6. Now click on the apply button on mouse properties dialog box. Step 7. Click on OK button when all the changes are done. अब आपका जो माउस पॉइंटर है इसकी जो शेप है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? आपको सबसे पहले माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, देन आपको पॉइंटर्स टैब पे क्लिक करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है पॉइंटर्स टाइप और आप जो भी पॉइंटर वहाँ पे चाहते हैं उसे आप कस्टमाइज लिस्ट से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र विंडो जो है अपीयर हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद आप रिक्वायर पॉइंटर पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको पॉइंटर की शेप चाहिए, जो भी उसका पैटर्न चाहिए उस पर आप सेलेक्ट करेंगे, देन आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे अपने माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पे। जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके देखोगे आपके जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे हो जाएंगे। Gaggle of gadgets. The Windows 7 desktop consists of a sidebar on the extreme right. This sidebar is a strip along the desktop's right edge that remain small group of programs called gadgets. These small programs display weather updates, instant message program and other tasks that need on the blink of your eye. You can access gadgets by right clicking on your desktop and selecting gadgets. On selecting gadgets, a list of gadgets will appear. By default, a gaggle of gadgets provide default 8 gadgets: calendar, clock, CPU, monitor, currency, feed, headlines, picture puzzle, slideshow and weather. गैगल ऑफ गैजेट्स होते हैं विंडोज 7 में आपके डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा साइड में आपके एक्सट्रीम राइट में आपको बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका क्लॉक होता है, कैलेंडर होता है, तो ये सारे आपके गैजेट्स कहलाते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका गैगल ऑफ गैजेट्स होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है 8 गैजेट्स, जिसमें आपके काफ़ी सारे गैजेट्स इंक्लूड होते हैं जो आपके वेदर की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको न्यू फीड्स के बारे में बताते हैं, हेडलाइंस के बारे में बताते हैं, न्यूज़ के बारे में बताते हैं, कैलेंडर, आपके जो बैटरी है उसके बारे में भी ये बताते हैं।
Let us rewind. Windows Media Player is used to play music, video and movie files. Ripping is copying song from audio CD to the computer. Burning is copying data from the computer to a CD. The control panel is a collection of several applications that allow us to control the setting of various software and hardware components of the computer. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.